See, in the last lecture, we have seen a concept about atomic number and atomic mass number. Atomic number tell us about the number of proton and electron present in the atom. मतलब अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा तो उससे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं. And atomic mass number tell about what? Proton and neutron together in the nucleus. Atomic mass number tell us about the number of proton and neutron present in the nucleus. And if you know the value of the atomic number and atomic mass number, then we can calculate the number of neutron present in the molecule. And we have seen the formula. The number of neutron present in the molecule are given by the, in atom, given by which formula? N is equal to A minus Z, where A is the mass number and Z is the atomic number. Till here we have done in the last lecture. Now today we'll be starting with the next heading, and the new heading is here about isotopes. Again, this part you must have done in the 10th standard or may not. I'm not sure about it, but we'll start. Isotope. I'll take one example first. Example, suppose if I say carbon. Carbon, we know carbon atomic number is 6. And its mass number, I can take here as 12. Second carbon, I can take its atomic number 6. Mass number 13. Third carbon, atomic number 6 and atomic mass 14. So here we are having three different, they are carbon only, but atoms are different. Three, why different? Because the first carbon atom has a mass of 12. Second carbon has a mass of 13. Third carbon atom has a mass of 14. So here, yes, correct. Atomic number is same and atomic mass number are different, and so we call them as an isotope. So basically what is isotope? The atoms of an element. I can just write down here. The atoms of an element having same atomic number, को सबका atomic number same है, having same atomic number but different atomic mass number. See the atoms of an element, ये हमारे जो atoms है, they are having same atomic number but different atomic mass number are called as isotope. They are called as a isotope, correct? Now we'll go for second property. See, they all are having same atomic number and they are having different atomic mass number. Second thing, atomic number is 6. So if I just calculate the proton, protons are 6. Okay, here also atomic number, so protons are 6. Atomic number 6, so protons are 6. Because atomic number tell us about the number of proton present in the nucleus of an atom. तो यहाँ पे atomic number 6 है, तो हमारे पास proton भी 6 है. Now we'll say neutron. Neutron. How to calculate the neutron? A minus Z. Because we know the formula for neutron. The number of neutron are given by the formula A minus Z. Number of neutron are given by the formula A minus Z. So this is A and this is Z. 12 minus 6. Number of neutron are 6. 13 minus 6. 7. 14 minus 6. 8. So what we see here, one more point I can add here. One more point I can say here. First point we already said, they are having same atomic number and different atomic mass number. The second definition can be also given. The atoms of an element
the atoms of an element having same number of proton but different number of neutron. The atoms of an element having same number of proton but different number of neutrons are also called as okay. What is second point you said? The atoms of an element having same number of proton. देखो इन पर सबके पास proton number same है. And but different number of neutrons can be also called as acidope. मतलब somebody can give to the first definition, somebody can give the second definition, but both are correct. What is the first one? The element having same atomic number but different atomic mass number are called as isotope. Okay. Second, the atoms of an element having same number of proton but different number of neutron are also called as a isotope. Okay. This is one example. I'll just take one more example, which is very commonly like we should know, I think. The second example I'll write over here as like, hydrogen or hydrogen. Hydrogen has got 1H1, 1H2 and 1H3. Hydrogen has 3 isotopes. See here, atomic number is same. Atomic number is same. The proton is 1. Number of proton here is also 1. And number of proton here is also 1. So atomic number is same. So number of protons are the same. Neutron. 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. 3 minus 1, 2. So out of this, see, these are 3 isotopes of hydrogen. But these, and they have different name. Normally here, we call this as a carbon. We call this also as a carbon. This also we called as a carbon. But isotopes of hydrogen have a different name. Isotopes of hydrogen have a different name. This 1H1, the 1H1 is called as, we say proton. Proton, it can be also called as a protium. 1H1 is called as a protium. And protium, always remember, यहाँ पे atomic number 1 है, atomic mass number 1 है, neutron नहीं. This is the only element which has a 0 neutron. This is the only element which has a 0 neutron, protium. And it can be also shown by the symbol H. Okay. Then second one, this is 1H2. 1H2 is called as deuterium. 1H2 is called as a deuterium and shown by the symbol D. अब ऐसे भी लिखते हैं 1H1, ऐसे भी 1D2, 1D2 ऐसे भी लिख सकते, मतलब you may write down as 1H2 ऐसे लिख सकते हो, और you may write down as what 1D2. D मतलब deuterium. मतलब अगर हाइड्रोजन का मास 1 रहेगा, देखो सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो उन्हें अलग अलग नाम कैसे आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू देयर मास नंबर. तो यहाँ पे मास 1 रहेगा तो प्रोटियम, मास 2 रहेगा तो ड्यूटेरियम, एंड अगर मास 3 रहेगा देन वी कॉल देम एज ट्रिटियम. यस करेक्ट, वेरी गुड. यस करेक्ट राज, ट्रिटियम. So this is tritium shown by with symbol T, or basically is the 1T3. So these are there, like they are known by this special name. So hydrogen has 3 isotopes, and these isotopes are known by this special name. The first one is called as a protium with mass number 1, deuterium with mass number 2, and tritium with mass number 3. Okay. So we have done with the isotope, and now we'll go for some characteristic property of isotope. So I'll have the next heading. The next heading we'll have here, that is
properties of isotopes. Properties of isotope. Now, what is the first property I can say here? See, they all are having same atomic number. And atomic number अगर same रहेगा, इसका मतलब they will occupy the same position in the periodic table. मतलब अगर हमें कोई बोलेगा कि ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे नंबर 1 पे मिलेगा. ये हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, नंबर 1 पे मिलेगा. ये हाइड्रोजन कहाँ पे मिलेगा, नंबर, बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर सेम है. और हमें मालूम है कि अपने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को जगह दी गई है, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर. अरेंजमेंट इज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर. तो सबका एटॉमिक नंबर अगर सेम रहेगा, देन दे ऑल विल ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, देखो यहाँ पे भी देखो कार्बन है, कार्बन सबका मास नंबर अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है. तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मतलब दे ऑल विल बी इन द सेम प्लेस. मतलब कार्बन कहाँ पे होता है नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में, कोई मुझे बोल सकता है इन द पीरियोडिक टेबल कार्बन का पोजीशन मुझे कोई बोल सकता है, कार्बन एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? 6. हाँ, एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन पोजीशन कहाँ पे है? सेकेंड रो. यस, सेकेंड रो, करेक्ट. एंड ग्रुप 14. Yes, correct. Very good. Carbon is in the second row. That is second row of the periodic table and group 14. So अगर yes, अगर हमें बोलेगा ये कार्बन कहाँ पे रहेगा, तो से तीनों कार्बन एक ही जगह पाए जाएंगे. But they all will occupy the same position in the periodic table. So what is the first point I can say here? All since, or I can say all isotopes. Sorry, since the atomic number is same, since the atomic number is same, they occupy, they means who? Isotope. They occupy same position in periodic table. They occupy same position in the periodic table. Okay. Second point I can say here, that is हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर. मतलब अगर बोले कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन. तो अभी देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6. एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6. एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 6. तो तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है, देन दे ऑल विल शो द सिमिलर रिएक्टिविटी. मतलब अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी क्या फॉर्म करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. और ये भी क्या फॉर्म करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन. करेक्ट. इसका मतलब सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. So they all will show the similar chemical property. एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कौन एलिमेंट कितना रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम. तो हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम. इन द एटम मतलब in the outermost shell. Okay, so because they all are having same atomic number, same number of electrons, so I can say here they show similar chemical properties. Yes, all isotopes, they should show what? Similar chemical properties. Correct, similar chemical properties. And I'll just add one more point here, that is all isotopes of an element
all isotopes of an element exist in a definite natural abundance. See here, all isotopes of an element exist in a definite natural abundance. Means what is the meaning of this? I'll explain. देखो अगर I'll just 1 minute. ओके अगर मैंने बोला कि हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. नॉर्मली यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर नहीं लिखा. एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत है क्योंकि हमें मालूम है कार्बन मतलब एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 6. तो नॉर्मली ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि जब हम लोग आइसोटोप की बात करते हैं हम लोग खाली मास नंबर लिखते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. अगर मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा. मालूम है कार्बन एलिमेंट मतलब एटॉमिक नंबर कितना रहेगा 6 एंड 6. ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स 3. ओके इनका कैसे मतलब परसेंटेज ऑफ देन abundance मतलब the percentage with which they occur in the nature, percentage with which they occur in the nature. What is percentage abundance? तो अगर मैंने कार्बन का कहां से सैंपल अगर मुझे मिला तो उसमें 98.9% रहेगा कार्बन 12, 1.1% रहेगा कार्बन 13 एंड लेस देन 0.0017% कौन रहेगा कार्बन 14. मतलब अगर मैंने बोला कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी मतलब कोई अगर कोई बच्चा या कोई साइंटिस्ट अगर रिसर्च कर रहा है और अगर उसने बोला कि मेरे पास कार्बन है, मतलब मैंने कार्बन रिसर्च करके फाइंड आउट किया है, तो जब कार्बन उसके पास रहेगा उस कार्बन में तीनों कार्बन रहेंगे और कार्बन 12 कितना रहेगा 98.9%, कार्बन 13 कितना रहेगा 1.1% और कार्बन 14 कितना रहेगा लेस देन 0.0017. या अगर हमने बोला कि फॉर एग्जांपल कहां से मतलब है ना बोलते कि कहां से मिट्टी लेके आओ और मिट्टी के अंदर बोला कार्बन है, तो मिट्टी के अंदर अगर कार्बन है तो ये कार्बन का रेशो हमेशा मतलब हमेशा फिक्स ही रहेगा. मतलब कार्बन 12 जो तुम्हें कार्बन वहां पे मिला है उस कार्बन ने 98.9% कार्बन 12 रहेगा, 1.1% कार्बन 13 रहेगा और कार्बन 14 का अमाउंट कितना रहेगा लेस देन 0.0. So what I want to say here कि always I can say here that the isotope of an element exists in a definite natural abundance. मतलब हर एक एलिमेंट का नेचर में ऑकरेंस फिक्स है, वो उतना हमेशा हमें मिलेगा, करेक्ट, नेचुरल. और दूसरा अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा क्लोरीन का, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप 1735 एंड 1737. ये 2 आइसोटोप्स. क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट. सो आई कैन से हियर chlorine has 2 आइसोटोप, करेक्ट, 2 आइसोटोप. इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरीन 35 है, क्लोरीन मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लोरीन 35 मतलब एटॉमिक नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर अभी यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिखा मतलब एटॉमिक नंबर कितना आएगा 17 ही आएगा. तो क्लोरीन 35 जो होता है वो नेचर में कितना मिलता है हमें 75% मिलता है और क्लोरीन 37 जो है वो हमें कितना मिलता है 25% मिलता है. इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो क्लोरीन 35 ऑकर 75% इन द नेचर एंड क्लोरीन 37 ऑकर 25% नेचर. मतलब अगर हमारे पास कोई आएगा और अगर बोला कि नहीं मेरे पास क्लोरीन का सैंपल है, सॉरी मेरे पास क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन उसके पास जो सैंपल रहेगा उसमें दोनों क्लोरीन रहेंगे, लेकिन उसके पास क्लोरीन 35 कितना रहेगा 75% और क्लोरीन 37 कितना रहेगा 25%. ये उनका मतलब आइसोटोप है. ओके
तो मतलब व्हाट आई वांट टू से हियर, द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट ऑकर इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन इन नेचर। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि क्लोरीन 35 तुम्हें कभी 80% मिला, क्लोरीन 35 कभी तुम्हें 90%, नहीं, ये नेचुरल अबंडेंस फिक्स है। मतलब अगर हमने कहां से भी क्लोरीन सैंपल लेके आए तो उस क्लोरीन सैंपल में 35 रहेगा 75% एंड क्लोरीन 37 रहेगा 25%, करेक्ट। ओके, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है बिफोर आई प्रोसीड, ये बाद में हम लोग करेंगे। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, तो पेज नंबर 37 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, प्रॉब्लम 4.2। I'll share the problem with you. सेम प्रॉब्लम इस कंसेप्ट के ऊपर ही। देखो क्या बोला उन्होंने यहाँ पे, द नो परसेंटेज आपको रिमेंबर नहीं करना है, मुझे खाली इतना बताना है आपको, मैं परसेंटेज तुम्हाला लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, फक्त मला एवढंच सांगायचं की प्रत्येक आयसोटोपचं नेचर मधलं जे पर्सेंटेज आहे ते फिक्स असतं। तुम्ही म्हणाल आज क्लोरीन 30, आज क्लोरीन 35 20% असं नाही, त्यांचं प्रपोर्शन बदलत नाही। ओके, सी हियर, 2 natural isotope of chlorine, 2 natural, 1 minute, two natural isotope of chlorine, one is chlorine 35, another one is chlorine 70, and they have given the relative abundance. What is relative abundance? They have given 3:1. Find out the average atomic mass of the chlorine. मतलब क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक का मास है 35, दूसरे का मास है 37, करेक्ट। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना है वो कैलकुलेट करो। उन्होंने नेचुरल अबंडेंस कितना बोला, 3:1 बोला है। ओके, 3:1। ओके, आई एक्सप्लेन हियर नाउ। सी 3:1 का मतलब क्या, देखो क्लोरीन 35 70%, 75% मतलब 3 times of this, so 3:1. Okay, so I can say here 2 isotopes of chlorine, that is chlorine 35 and chlorine 37 occur in the nature in the ratio of 3:1। मतलब मैंने यहाँ पे आपको परसेंटेज में बोला था, उन्होंने रेशियो दिया 3:1। मतलब क्लोरीन 35 जो रहेगा वो कितने पार्ट में मिलेगा, 3 पार्ट, और क्लोरीन 37 क्या मिलेगा, 1 पार्ट। तो व्हाट इज द एवरेज atomic mass of chlorine, what is the average atomic mass of the chlorine का average atomic mass कितना रहेगा। so how to calculate average atomic mass, so here I'll write down average atomic mass is equal to, देखो क्लोरीन 35 जो है उसका प्रोपोर्शन कितना है, 3, तो 35 into 3 प्लस क्लोरीन 37 उसका प्रोपोर्शन कितना है, 1, तो 37 into 1, 35 into 3, 37 into 1 divided by 3 plus 1। अभी उन्होंने 3:1 दिया, इसलिए हमने 3 plus 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 plus 1 4। लेकिन अगर परसेंटेज में लेते हो तो 75, यहाँ पे अगर आपने 75 लिखा, यहाँ पे आपने 25 लिखा, तो इधर कितना लिखोगे, 100। बट आई एम टेकिंग इन द पार्ट, आई एम टेकिंग हियर इन द पार्ट, 3:1 में मैं ले रहा हूँ, 3:1, तो ये आ जाए करेक्ट। और मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आंसर मिलेगा, 35.5। सो वी नो दैट, सो देयरफॉर वी से एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज दिस मच। तो हमें मालूम है हम क्लोरीन का एटॉमिक मास हमेशा कितना लिखते हैं, अगर हमें बोले क्लोरीन का एटॉमिक मास बोलो तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5 है।
35 का एक आइसोटोप है, 37 का दूसरा आइसोटोप है, उनका ये परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस है, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास इतना है एवरेज। हाउ टू कैलकुलेट, आपका जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो चल रहा है वहां पे आप और ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे इस कंसेप्ट के ऊपर। ओके, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल था, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है? द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू इट्स परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस प्लस atomic mass of the element into its percentage of occurrence divided by total। ये वैसे भी कर सकते हो, और अगर दूसरा मेथड क्या था यहाँ पे, और एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, 35 इंटू 3 पार्ट, मतलब कितना, 75%। तो 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 1 पार्ट मतलब कितना, 25% डिवाइडेड बाय 100। ऐसे भी सॉल्व करोगे, देन ऑल्सो वी गेट द आंसर 35.5 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते। तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ में आ गया। आई जस्ट रिपीट, व्हाट इज एटॉमिक, व्हाट इज आइसोटोप? Element having same atomic number and different atomic mass number are called as the isotope. Second, they contain same number of proton but different number of neutron are called as the isotope. Then we have given the properties. What is the properties they have said? Because they have the same atomic number, they occupy the same position in the periodic table. Second, they have similar chemical properties, and third, they have a definite natural abundance। मतलब हर एक एलिमेंट का नेचर में जो ऑकरेंस है वो फिक्स है। ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला देखें। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, उनके अलग अलग नाम है। फर्स्ट आइसोटोप इज कॉल्ड एज द प्रोटियम, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द ड्यूटेरियम, एंड थर्ड one is called as the tritium. And out of all these elements, this is the only element which has got a 0 neutron. तो आइसोटोप में कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना चाहते हो मुझे आइसोटोप्स के बारे में बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक? काही विचारायचं असेल तर विचारा। आर्यन, काही विचारायचं आहे का? आर्यन? नो सर। हाँ ठीक है, दुसरा कोणाला काही डाउट आहे का? ठीक है, तो shall I go for the next topic then? So yes, we have finished with the isotope. Okay. Yes, now I'll just talk about isobars. I'll take first example. Suppose here we take the example. The example is carbon, atomic number 6, mass number 40. Nitrogen, atomic number 7, mass number 40. So you can make out from this example कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास 40, एटॉमिक नंबर 7, मास, तो दोनों का मास सेम है। ओके, so what are isotopes? The elements having different, or you can say element having same atomic mass number, या आगे चल के आप खाली एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। The element having same atomic mass number but different atomic number are called isobar। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन हुआ। बड़ा आइसोबार,
द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर, उनका मास नंबर सेम रहेगा, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज अ आइसोबार, करेक्ट, आर कॉल्ड एज अ आइसोबार। अभी सेकेंड पॉइंट देखो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने रहेंगे 6, न्यूट्रॉन A माइनस Z 14 माइनस 6 8, एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन कितने रहेंगे 7, न्यूट्रॉन 14 माइनस 7 कितने रहेंगे 7। यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर डिफरेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, लेकिन उनका सम सेम है, 6 प्लस 8 14, 7 प्लस 7 14। ओके, सो व्हाट वी कैन से सेकेंड पॉइंट, the element, I can also write the other way also here, the elements, or I can just write the elements, or I can say here isobars have different number of protons, neutron. Isobars have different number of protons and neutron, correct? But the number of nucleon is same. What is nucleon? Proton plus neutron together are called as a nucleon. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन देखो, दोनों को ऐड करो 14, ये 14 आ रहा है, 7 प्लस 7 ऐड करो 40, मतलब उनका आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज द सेम। या तो इसे थोड़ा अलग पॉइंट कर सकते हो या सेम पॉइंट में ऐड कर सकते हो। ओके, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो। सो व्हाट इज आइसोबार? द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर but different atomic number are called as the isobar. This is the one point. Second one, isobar have different number of proton and neutron, but the number of nucleon, that is sum of the proton neutron, is the same. अभी मैं इसका यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख सकता हूँ, प्रॉपर्टीज, और अगर चाहिए तो आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। The one more example I can say here is argon, potassium and calcium. Argon, potassium, calcium. Argon का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 and calcium atomic number 20. But the mass number is 40 and 40. मतलब इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम, और मास नंबर अगर सेम रहेगा देन वी कॉल देम एज आइसोबार। ओके, और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि प्रोटॉन कितने रहेंगे यहाँ पे 18, न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 22, प्रोटॉन 19, एटॉमिक नंबर 19, प्रोटॉन 19, न्यूट्रॉन 40 माइनस 19 21, प्रोटॉन 20 और 40 माइनस 20 न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 20 आ जाएंगे, करेक्ट। So what we see here, atomic number is the same, atomic number is different, so they can be called as a, this example can be called as a isobar। ये हमारा isobar का example है। What is second point? They contain different number of proton and different number of neutron, correct, वो भी correct आ रहा है, but sum of the proton and the neutron is same, and sum of the proton neutron is called what? Mass number, वो same आ रहा है, correct। Now I'll just go for the next heading, properties of isobar. Properties of isobar. Now what is the first property we can say here? यहाँ से हमें पता चलता है इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, और एटॉमिक नंबर अगर अलग अलग रहेगा इसका मतलब दे विल ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। आर्गन कहाँ पे होता है पीरियोडिक टेबल में, कोई बोल सकता है मुझे? आर्गन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होता है? Yes. Group.
Yes, 0 group, the last group, correct. 18 group. पोटेशियम कौन से ग्रुप में आता है? Yes. First group. Potassium is in the which group? First group. First group, correct. And calcium is in the which group? Second. Second group, correct. Very good. That means what we see here, इनका atomic number different है. And because they are having the different atomic number, they will occupy different position in the periodic table. So I can say here, since they have different atomic number, they occupy different position in the periodic table. They occupy different position in the periodic table. Okay. Second point. अच्छा मुझे बोलो, इनके केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगे क्या? इनके केमिकल प्रॉपर्टी मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो विल दे ऑल रिएक्ट विद द सिमिलर वे? नो, करेक्ट. दे विल नॉट रिएक्ट इन द सिमिलर वे बिकॉज उनका एटॉमिक नंबर अलग है, उनके प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग है. तो अगर इनका इलेक्ट्रॉन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, तो इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिएक्ट इन द डिफरेंट वे. सो दे शोज different physical and chemical properties. They shows different physical and chemical. Physical का मतलब क्या मालूम है? मास. आर्गॉन गैस है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, करेक्ट. बाद में आर्गॉन लेस रिएक्टिव है या रिएक्टिव ही नहीं है, इनर्ट गैस है. पोटेशियम एंड कैल्शियम मोर रिएक्टिव मेटल है. मतलब उनके फिजिकल, उनकी रिएक्टिविटी भी अलग है और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है. तो दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, करेक्ट. दे शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये हमारा आइसोबार के बारे में. Let us repeat once again. What is isobar? The element having same atomic mass number but different atomic number are called as isobar. Second, they contain different number of protons and neutron, but the number of nucleon is the same. What is the property? Because they have different atomic number, they occupy different position in the periodic table. And second, they shows different physical and chemical properties. Okay, so we have finished with the isobar now. Please, anyone want to ask me anything related to isobar? उन्होंने कहा आइसोबार बद्दल विचारायचं आहे का? Shreya, you want to ask anything? Yes, Shreya, you want to ask anything? Okay, all right. No, I'll go for the next heading. Yes, now I'm going for the next heading, that is called as the isotopes. The next heading is called as the isotope. Now I'll give you the example first. Suppose we have the boron. देखो आपको मतलब 1 to 20 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए. 1 to 20 एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1 to 20 एटलीस्ट मालूम होने. बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5. मास नंबर 11. कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12.
बोरॉन, ए बोरॉन है, बी स्टैंड फॉर बोरॉन, सी स्टैंड फॉर कार्बन। अब यहाँ पे क्या उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और उनका मास नंबर भी डिफरेंट है। तो आई जस्ट कैलकुलेट द प्रोटॉन। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 5, प्रोटॉन 5। न्यूट्रॉन 11 minus 5, 6। एटॉमिक नंबर 6, प्रोटॉन 6। न्यूट्रॉन 12 minus 6, 12 minus 6, 6। So what you observe here, they are completely different element। मतलब एलिमेंट तो अलग अलग है ही है, एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, मास नंबर भी सेम नहीं है, लेकिन उनके पास क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, number of neutrons are the same। Number of neutrons are the same। So what is isotones? I can say the atoms of different element, atoms of different element। ये देखो, ये बोरॉन है, तो कंप्लीट अलग अलग एलिमेंट ही है। तो सबसे पहले दो एलिमेंट सेम नहीं है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, having same number of neutron in their nuclei, in their देखो न्यूट्रॉन कहां पे मिलते हैं हमें, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एक एटम का न्यूक्लियस, दो एटम का प्लूरल, न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। एक एटम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और दो एटम के मतलब दो एटम का क्या होगा, प्लूरल, तो प्लूरल क्या आएगा, न्यूक्लियाई। ये सिंगल के लिए न्यूक्लियस और मेनी के लिए क्या आएगा, न्यूक्लियाई, ये प्लूरल है। ओके, सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड isotope, are called isotope। What are isotone here? The atoms of different element having same number of neutron in their nuclei are called as a isotope। So we have done three heading here. One is isotope, second one is isobar, and third one is isotope। Okay, now I'll just relate to this, I'll just do some questions and then we will go ahead। Okay, some questions I will give you as a homework and some I'll be doing here with you all। देखो यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम 4.3। They have given three elements are there। कौन से three elements है, Q, R and T। Three elements are there, Q, R, T। Okay, 3 R, T, and then they have the mass number 40। तीनों they have mass, तीनों का mass number कितना है दिया हुआ है, they have mass number 40। The atom contain 22, 21 and 20 neutron respectively। They represent the atomic composition with the appropriate symbol। I'll just see here, I'll write here, page 37, problem 4.3। Okay, now here in that 60 there are three elements are there, Q, R, or I'll say Q, R and T। Q, R and T, correct। They are having same atomic mass। मतलब इसका atomic mass भी कितना 40 है, इसका भी atomic mass 40 है और इसका भी atomic mass 40 है, same atomic mass। And they have given the number of neutron। Here the number of neutron are 22। Here the number of neutron are 21 and here the number of neutron are 20। ये उन्होंने इंफॉर्मेशन किया हुआ। हमारे पास तीन एलिमेंट्स है, Q, R, T। उनका मास दिया हुआ है, मास मतलब A। They have given the value of A। They have given the number of neutron।
एंड दे आस्क अस द क्वेश्चन, ये जो एटम्स है उसे रिप्रेजेंट करो, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा, हमें फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट वी हैव द फॉर्मूला मास नंबर, that is A is equal to what? Z plus N. Mass number is equal to what? Z plus N. Z is the atomic number. And atomic number is what? Number of proton. Mass number is A equal to Z plus N. तो अभी हमें यहाँ पे A मालूम है, मुझे यहाँ पे N मालूम है. देखो A मालूम है, Z मालूम है. क्या लिखना है? Z. Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से ये एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है? प्रोटॉन. अगर मुझे एटॉमिक नंबर मालूम है तो मुझे क्या मिलेगा? प्रोटॉन. तो अगर मुझे फर्स्ट के लिए प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, सेकेंड से फॉर क्यू के लिए मुझे क्या फॉर्मूला यूज करना है? Z इक्वल टू A माइनस N. Z इज इक्वल टू A माइनस N. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज 40, N is 22, and then here I will get 40 minus 22. How much I will get? 18. 18, correct? So A has atomic number 18. So then for R, again R के लिए क्या निकालोगे आप? Z equal to A minus N. A minus N. R के लिए A कितना था? 40 था. न्यूट्रॉन 21 थे. 40 minus 21, that is equal to 90. Okay, yes. Then for T के लिए अगर Z मुझे निकालना है तो A minus Z. T के लिए देखो A 40 था और A 20 था. 40 minus 20 equal to 20, करेक्ट? तो ये हुआ. तो हमें तीन एलिमेंट. तो अगर मुझे Q का सिंबल लिखना है, Q, तो Q का मास 40 है और एटॉमिक नंबर 18. तो दिस इज द सिंबल फॉर Q. देन यहाँ पे मास 40 था. R के लिए मास 40 है, एटॉमिक नंबर 90. और T के लिए मास 40 है और एटॉमिक नंबर 20. ये मिला, करेक्ट? तो दिस आर द थ्री एलिमेंट. और इनसे और एक हम रिलेशन मिलता है. इनको, इन तीन एलिमेंट को आप क्या बोलोगे? ये जो तीन एलिमेंट्स है Q, R और T, विल यू कॉल देम एज द आइसोटोप और आइसोबार? आइसोबार, यस, करेक्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर. उनका एटॉमिक मास नंबर. आई कैन राइट वन मोर हेडिंग हियर. Q, R and T elements can be called as isobar. Can be called as isobar, correct? Why we are calling them as isobar? Because they are having same atomic mass. उनका atomic mass same. Okay. तो इसके रिलेटेड मैं आपको होमवर्क के लिए थोड़े क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है? और do one more questions with you. देखो ये मैं आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे दूंगा. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया? देखो सब्सटेंस दिया है कार्बन 14. कार्बन 14 मतलब कार्बन 14 मास कितना रहेगा? यस, उन्होंने देखो फर्स्ट कॉलम मास है, तो मास नंबर कितना लिखोगे आप? बोलो. 0.00017. नहीं, कार्बन उन्होंने क्या बोला? कार्बन का मास लिखो ना, कार्बन का मास. यहाँ पे उन्होंने कार्बन 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? उसका मास लिखना है. तो मास मतलब यही मास है ना. हाउ डू राइट आइसोटोप? मैंने क्या बोला था? आइसोटोप जब हम लिखते हैं तो खाली उसका मास लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं लिखते. तो एटॉमिक नंबर कितना रहेगा कार्बन का? 6. और ये उसका मास है. एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक मिनट.
थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन ऐसा लिखा है, कार्बन 14 लिखा हुआ है, बस कार्बन 14। तो उन्होंने एटॉमिक नंबर नहीं दिया, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6. 6 है। और कार्बन का यहाँ पे देखो, कार्बन के अलग अलग मास है, तो यहाँ पे कितना मास दिया हुआ है, 14. 14। तो ये जो वैल्यू है उसे हमेशा मास बोलना है। ये कार्बन 14 मतलब कार्बन के इस आइसोटोप की वो लोग बात कर रहे हैं। तो आई जस्ट राइट डाउन हियर, उन्होंने पहले क्या बोला, मास नंबर, और आई जस्ट राइट हियर मास नंबर। यस, तो मास नंबर कितना है हमारे यहाँ पे, 14 है। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो। देखो मास 14 है। अभी कार्बन, उन्हें यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर अगर 6 रहेगा, एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन भी रहेंगे 6 और इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे 6। न्यूट्रॉन, व्हाट इज द फॉर्मूला वी यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? A minus Z. यस, n इज इक्वल टू a माइनस z, करेक्ट। तो हमारा ये 14 है और 6 है, तो 14 माइनस 6 न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आएंगे, करेक्ट। आई टेक वन मोर एग्जांपल, लेड 208, लेड या कोई लोग लीड बोलते हैं, लेड 208। 208 क्या है लेड का? मास नंबर. यस करेक्ट, वेरी गुड। ये जो 208 है वो मास नंबर है, हमेशा ध्यान में रखना, एलिमेंट के सामने जो लिखा रहेगा वो मास नंबर है। अभी लेड का एटॉमिक नंबर आपको इतना हम लोग यूज टू नहीं, लेकिन लेड का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 82 है, एटॉमिक नंबर 82 है। ये सारे एटॉमिक नंबर आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, अपने ही बुक में अपना 5th 6th चैप्टर है कुछ पीरियोडिक टेबल, वहां पे आपको एटॉम, तो लेड का एटॉमिक नंबर 82 है। तो अभी मुझे बोलो मास नंबर 208 आएगा, एटॉमिक नंबर 82 है, तो प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? 82। इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 80। और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? न्यूट्रॉन 208 माइनस 82 करो, 126. 126। ओके, तो ये कर सकते हो आप। तो इस तरह आपको अलग अलग एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दिए हुए। देखो उन्होंने क्या दिया, क्लोरीन 35। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कोई मुझे बोलेगा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कोई बोल सकता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. करेक्ट। दूसरा एलिमेंट है यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 92. करेक्ट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 करेक्ट, यस। और रेडियम का एक तुम्हें देखना पड़ेगा, रेडियम का एटॉमिक नंबर, रेडियम इनर्ट गैस रहेगा, मतलब रेडियम है, सॉरी रेडियम ग्रुप 1 में आएगा, रेडियम ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में आएगा। तो ये आपको एटॉमिक नंबर वहां पे उन्हें लिखा है, हाउ मच? 88। ओके, वेरी गुड। हाँ, रिफर टू द पीरियोडिक टेबल इफ रिक्वायर्ड, करेक्ट। और यहाँ पे और एक एग्जांपल देखो, लास्ट का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, 5th का A, if element X has the mass number 11 and has a 6 neutron, then write down its representation. मास नंबर 11 है, 6 न्यूट्रॉन है, राइट डाउन इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो बोलो एटॉमिक नंबर कितना आएगा फिर? I'll write on the paper 1 minute। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5A, और they have said element X has mass number 11 and has 6 neutrons. Then
write its one minute. Yes. See, element X has a, I'll answer your question. Element X has a mass number 11. हमारे पास element X है, उसका mass number 11 है. 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका representation क्या लिखोगे? तो अभी देखो mass number 11 मतलब you know A equal to 11. सर हा सम आपण लास्ट लेक्चर मध्ये केला आहे. केला है? हो सर. Okay, okay. ठीक है, no problem then. I'll just 1 minute. I'll just complete. Neutron 6. तो प्रोटॉन कितने हैं? 11 minus 6 5. तो here I write X 5. Okay. So done. Okay, so I've finished with the 3 heading now. The first heading we have done with the isotope. Second heading we have done with the isobar. And third heading we have done about the isotopes. Correct? So 3 headings are done. Now the next heading we have to go for. The next heading is, you know, that is स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. मतलब अभी तो हमने क्या किया, डिस्कवरी किया. मतलब एटम्स के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, एटम किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से बना होता है. करेक्ट. तो अभी हमें यहाँ क्या देखना है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में, मतलब एटॉमिक मॉडल. एक पार्ट में कंप्लीट कर लेता हूँ, एटॉमिक मॉडल. एंड द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा. द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल was suggested by J.J. Thomson. मतलब एटम में हमें इतना मालूम है कि एटम के अंदर पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स है. तो वो कहाँ पे रहेंगे, किधर रहेंगे, इनके बारे में पहली बार अगर किसी ने बात की रहेगी तो कौन साइंटिस्ट थे वो? J.J. थॉमसन थे. तो द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज सजेस्टेड बाय J.J. थॉमसन. करेक्ट. एंड इन द ईयर 1898, इन द ईयर 1898, मतलब उन्होंने प्रपोज किया. उन्होंने क्या प्रपोज किया? सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट व्हाट ही सेड, एटम हैज स्फेरिकल शेप. तो सबसे पहले उन्होंने इंपॉर्टेंट क्या बोला कि एटम हैज अ स्फेरिकल शेप. एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है, और एटम हैज अ स्फीयर लाइक शेप. एट द फर्स्ट पॉइंट ही सेड कि एटम जो हमारा कैसे रहेगा, स्फेरिकल शेप रहेगा. Second point he said that atom has a radius of about 10⁻⁻10 मीटर. मतलब एटम का जो हमारा रेडियस रहेगा वो कितना रहेगा? 10⁻⁻10 मीटर. अगर 10⁻⁻10 मीटर मुझे डेसिमल पॉइंट में लिखना है तो कैसे लिखोगे डेसिमल पॉइंट में? 1 के ऐसा आएगा 0. ये ऐसा इतना स्मॉल, मतलब इतना स्मॉल है. मतलब हमारा जो एटम्स है उसका रेडियस कितना है? 10⁻⁻10, मतलब इतना स्मॉल रेडियस है. सो एटम हैज अ रेडियस ऑफ अबाउट इतना रेडियस है. थर्ड, in the atom the positive charge is uniformly distributed. मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स थे, एटम के अंदर प्रोटॉन्स थे, मतलब एटम के अंदर क्या था? पॉजिटिव चार्ज था. तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हो कैसा है? देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है.
and the electrons are embedded. Electrons are embedded into it uniformly. I'll explain the meaning of this. देखो फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर है. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि एटम का शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है. सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एटम का जो रेडियस है वो रेडियस कितना रहेगा, 10⁻⁻10 मीटर, मतलब वेरी स्मॉल है. और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला कि एटम जो है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट. अभी इसका मतलब कैसे मालूम है, आई एक्सप्लेन द हियर, कि अगर हमारे पास केक रहेगा, केक, तो केक का जो लेयर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज. और केक के ऊपर जो स्ट्रॉबेरी या रेजिन्स जो भी लगा हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. मतलब पूरा केक मतलब पॉजिटिव चार्ज. देखो अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या क्या नाम दिए थे, देखो पहले मैं इनके नाम लिखता हूं. द फर्स्ट स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर वाज आल्सो कॉल्ड एज द watermelon method. It is also called as a watermelon, Kalinger watermelon method. It is also called as a plum pudding model. It is also called as a watermelon. Sorry, it is also called as a watermelon model. It is called as a plum pudding model, or it is also called as a रेजिन. और प्लम की जगह आप क्या बोल सकते हो, रेजिन्स पुडिंग मॉडल. देखो इस मॉडल को उन्होंने अलग अलग के नाम क्या दिए थे. द फर्स्ट नेम इज कॉल्ड एज द वाटरमेलन मॉडल. वाटरमेलन का मतलब कैसे मालूम है, देखो अगर आपने कलिंगड लिया तो उसमें पूरा पार्ट रेड होता है, रेड, पूरा पार्ट रेड. तो रेड पार्ट मतलब क्या, रेड पार्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज. वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है. और वाटरमेलन के अंदर जो सीड्स है, अंदर जो हमें सीड्स दिखाई दे, सीड्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है. सीड्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है. तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, मतलब पूरा एटम में स्प्रेड आउट रहेगा पॉजिटिव चार्ज. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे, बीच बीच में एम्बेडेड रहेंगे. वो भी कैसे रहेंगे, लेकिन यूनिफॉर्मली, मतलब सब इलेक्ट्रॉन एक साइड में नहीं रहेंगे, ऐसे बीच बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. और ऐसा अरेंजमेंट क्यों रहेगा, सो एज टू गिव, सी इन द एटम द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and the electrons are embedded into it uniformly so as to give most stable electrostatic arrangement, so as to give more stable electrostatic arrangement. Okay, so as to give more stable electrostatic means what, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, उनका चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे प्रोटॉन्स है जिनका चार्ज पॉजिटिव है. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. करेक्ट. अच्छा, तुम लोग बोलते हो सर, आपने, हम लोग तो बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, लेकिन तब न्यूक्लियस का डिस्कवरी नहीं हुआ था. खाली क्या डिस्कवर, जब थॉमसन ने अपना मॉडल प्रपोज किया तो उस टाइम पे खाली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, इसीलिए उसने इस मॉडल में न्यूट्रॉन की बात नहीं करे. वो जब थॉमसन ने अपना डिस्कवरी किया तब वो क्या डिस्कवर हुआ था, खाली प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन
नेगेटिवली चार्ज, दो ही पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि एटम है ना, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो एक जगह नहीं पाया जाएगा, पूरे एटम में सब जगह रहेगा, और निगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो भी उसके ऊपर बीच बीच में ऐसे लगे रहेंगे। और ऐसा एलिमेंट क्यों रहेगा? ताकि हमें क्या मिलना चाहिए? मोर स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। और इस जो मॉडल है, ये जो स्ट्रक्चर, उसने क्या नाम दिया था? वाटरमिलन मॉडल, या उसे क्या नाम दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग मतलब अपना खाने का एक चीज मिलता है, पुडिंग। पुडिंग के ऊपर ऐसे स्मॉल स्मॉल ऐसे टॉपिंग्स लगाते हैं, प्लम्स। या दूसरा, पुडिंग के ऊपर क्या लगा? रेजिन, किशमिश, किशमिश लगा, रेजिन, मनुका, तो इसलिए क्या उसे बोलते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल। तो इस तरह से उन्होंने मॉडल बना दिया। और एक पॉइंट यहाँ पे है जो लास्ट पॉइंट रहेगा, the fifth point. Yes, I have to write a third point. So fourth point. What is the fourth point? He said the mass of atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. Yes, the mass of the atom is assumed to be what? Uniformly distributed over the atom. मतलब एटम का जो मास रहेगा, मास मतलब अगर मैंने बोला कि एटम का मास 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम मतलब 10 ग्राम एक साइड में नहीं रहेगा, 10 ग्राम यहाँ पे नहीं, सब जगह 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम ऐसा रहेगा। मतलब पूरा एटम का जो मास है ये पूरे इसमें रहेगा, पूरा स्प्रेड आउट रहेगा। The mass of the atom is assumed to be uniformly distributed in the over the atom. तो what is the Thomson model? देखो हमारी बुक में थॉमसन मॉडल नहीं दिया है, लेकिन आपको आगे वाला मॉडल समझ में आने के लिए आपको थॉमसन मॉडल के बारे में मालूम होगा कि व्हाट इज थॉमसन, कि उसने सबसे पहले क्या बोला था। देखो उनका रिसर्च कभी हुआ था? 1898 में। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कभी हुए थे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे 1896 के आसपास कुछ। और उसके बाद उन्होंने ये मॉडल सजेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले क्या बोला? एटम हैज अ स्फेरिकल शेप, एटम हैज अ रेडियस ऑफ 10⁻⁻10 मीटर, एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज विच इज यूनिफॉर्मली सब जगह स्प्रेड हुआ है, और उसके ऊपर बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। ये एटम का मॉडल किसके तरह दिखाई देता है? वाटरमिलन की तरह या रेजिन पुडिंग की तरह। और लास्ट पॉइंट कि एटम्स का जो मास है वो भी कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा एटम के अंदर। लेकिन बाद में पता चला ये सारे पॉइंट मतलब हाँ 2-3 पॉइंट करेक्ट है। और एक सबसे पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम हमारा इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है। मतलब एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उतने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहेंगे, तो एटम न्यूट्रल है। मतलब इसके सारे पॉइंट तो करेक्ट नहीं थे, लेकिन 2-3 पॉइंट करेक्ट क्या थे? सबसे ये पॉइंट उसका इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने बोला कि हमारा जो एटम्स है वो कैसा है? इलेक्ट्रिकली, हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आपको समझ में आएगा जे थॉमसन का मॉडल? मुझे 1 by 1 पॉइंट बोल सकते हो? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ जे थॉमसन? Atom has spherical shape. Yes, atom has a spherical shape. Correct. Second point क्या बोलोगे? Atom radius has 10⁻⁻10 meter. Yes, मतलब इससे पता चला कि एटम का साइज बहुत ही छोटा है। Yes. थर्ड पॉइंट कौन बोलेगा? It is positively charged and it is uniformly distributed. Yes, the positive charge in the atom is uniformly distributed. का मतलब समझ में आ रहा है आप सबको? मला समजून सांगशील आर्यन कसं काय? म्हणजे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे काय? कसं काय? त्या ऍटमचा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो सगळ्यांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतो, सगळ्यांमध्ये वाटला जातोय. बरोबर. ओके, व्हेरी गुड. आता इलेक्ट्रॉन जर एम्बेडेड ऑन इट, त्याचा अर्थ कोण मला सांगू शकेल? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, हे कोण सांगू शकेल? दुसरं कोणी?
येस, अरे बोलायचं. इलेक्ट्रॉन एम्बेडेडचा अर्थ काय होतो? इलेक्ट्रॉन्स मध्ये मध्ये आहेत. हा, मध्ये आपलं आपण कलिंगड घेतो, रेड पार्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज, बरोबर, आणि मधल्या ज्या बिया आहेत ते म्हणजे काय झाले, इलेक्ट्रॉन झाले, बरोबर. येस. त्याच्यानंतर ह्या मॉडेलला कुठली कुठली नावं दिली गेली आहेत? कोणी दुसरा सांगू शकेल? बाकीचे पण बोला ना रे. वॉटरमेलन मॉडेल, प्लम पुडिंग मॉडेल, रेझिन पुडिंग मॉडेल. Okay, very good. Thank you. Yes, okay. What is the next point they have said? The mass of atom is assumed to be uniformly distributed. याचा अर्थ कोण सांगू शकेल का मला? मास ऑफ द ॲटम युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेडचा अर्थ कोण सांगू शकेल का? येस, कोणी प्रयत्न करू शकेल? येस सर. एका ऍटमचा मास सर्वत्र सेम असतो. सर्वत्र सेम असतो. ओके. आणखीन जर दुसरं कोणी सांगू शकेल काही? बरोबर आहे. अजून दुसरं कोणी सांगू शकेल? सगळीकडे पसरलंय ते. हा, सगळीकडे मास. पसरलं, बरोबर. म्हणजे ॲटम हा, पर्टिक्युलर ठिकाणी नाहीये का? एका पर्टिक्युलर ठिकाणी नाहीये, बरोबर. तो सगळीकडे काय झालं, पसरलेला आहे, बरोबर. आणि पुढचा पॉइंट काय आहे? ऍटम The atom is electrically neutral. ॲटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. न्यूट्रल आहे म्हणजे काय सांगू शकाल मला तुम्ही?